Students, keep adding relative motion. Okay, keep adding relative motion. Right. Okay, students. Already relative motion in one dimension we have discussed. This time, after knowing the vector and motion in 2D, we'll go for relative motion in 2 dimension. Right. Students, let two moving objects. This object having A, its velocity is Va. Another object is V, its velocity is Vv. Right. So I am saying its velocity Va means what? It's the velocity of the body A with respect to a reference point. If no other reference point is given, then we have to take reference point as ground. Let we have not given any reference point is not mentioned, then we have to take the reference point as ground. Yes or no? So student, VA means velocity of A with respect to B. You know, velocity of A with respect to B means that is VAO minus VBO, right? VAO means students, VAB means what? VAB means relative velocity of A, right? Relative velocity of A with respect to B. VAO means what? Relative velocity, right? VAO means relative velocity of A with respect to O. Yes or no? O क्या है? O is the reference point. O is, right, reference point. Correct. O reference point है. समझ पे आ रहा है? If O is reference point, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर तो हम ग्राउंड को लेंगे और ग्राउंड रेस्ट पे है, तो इसीलिए हम VA माइनस VB डायरेक्टली लिख देते हैं. करेक्ट. लाइक दैट अगर हम VBO की बात करें, so VBO means relative velocity of B with respect to O. We can write relative velocity of B with respect to O. Correct. समझ पे आ रहा है स्टूडेंट्स? And O is the reference point. Yes or no? Just write it. So it's VAB means, so if it is ground and the ground is rest, then you can write VAB relative velocity of A with respect to B means VA minus VB, right? And if B is assumed to be rest, when B is assumed to be rest, then VB is equal to, we will not put VAB is equal to VA. And if I will be asking you what is VA, then what you will write? Sir, VAB plus VB, correct? If I'll be saying find VB, then what you will write? So VB is equal to how much? VA minus VAB. These things will be required. Right? I'm saying the velocity of a person is this much meter per second. That means next question from your side should come to your mind that with respect to what? With respect to another moving body, or with respect to the ground, or with respect to any other body who is having rest or who is having moving with any other velocity. That you should think, because on that basis it depends. This is the relative velocity is the VAB, or V. If B is 0, then that is VA. I am going 10 meter per second with respect to ground. That means ground is at rest. If the ground is a moving platform, then the scenario will change. We have to take a different, separate approach for that. Correct? Getting students? Yes or no? तो अगर आप उसको वेक्टोरियली अगर मैं आपको दिखाऊं, if अगर मैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, let this is velocity of A with respect to O, correct? And this is velocity of B, let this is velocity of B with respect to O, correct? So student, resultant, that means VAO minus VBO, so that is, this is the resultant velocity, that is VAB, correct? Yes or no? This is the relative velocity, VABB. And if students, I will differentiate the relative velocity dB by dt को मैंने differentiate किया VAB को, then मुझे individually d by dt of A with respect to O, मतलब VA with respect to O, minus d by dt of velocity of B with respect to O, दोनों को differentiate करना होगा. That means कहने का ये मतलब है कि relative acceleration भी हम निकाल सकते हैं. Relative acceleration of B
of relative acceleration of A with respect to B is equal to relative acceleration of A with respect to origin minus relative acceleration of A B with respect to origin. Correct? ये भी सही है. Just note this much. Yes, sir. Student just see next. मान के चलो मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रहा है, ये तो सेम डायमेंशन वाले क्वेश्चंस आप ऑलरेडी किए हो वन डायमेंशन पे. बट आई एम सेइंग मोशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस. With this approach we are moving towards the two dimensional applications. Relative motion का application two dimension पे. ठीक है स्टूडेंट्स, मान के चलो फॉर एग्जांपल person A, right, person A moves in east direction, moves in east direction, right, with 10 meter per second, with 10 meter per second. ठीक है. Another person B, another person B moves 30 degree east of north, 30 degree east of north with 10 meter per second, right? इस तरह. Find the velocity of B with respect to A. Find the velocity of B. Find the velocity of B with respect to A, right? So that means I have to find VBA, correct? That is VB minus VA, isn't it? है ना? स्टूडेंट्स अगर मैं उसको थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बेसिस पे, ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, करेक्ट है ना. फास्ट तो दिया हुआ है कि एक आदमी इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे, मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकंड, है ना. सेकंड में दिया हुआ है मूव्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ. गेटिंग माय पॉइंट ना? 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ मतलब इस तरह मूव कर रहा है ना बीवी, करेक्ट और नॉट? दिस इज 30 डिग्री. इज दैट क्लियर टू ऑल? और ये इसी डायरेक्शन में बीवी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे. डायग्राम समझ पे आ रहा है सबको? ए इस तरफ मूव कर रहा है और बी अलोंग दिस 30 डिग्री बना के मूव कर रहा है. यस सर नो? Yes, sir. Very good, students. So if I will take just a minute. Friends, अगर मैं इसको ये तो along जो जा रहा है, अगर velocity of A की बात हो तो that is 10 मीटर पर सेकेंड. वो ईस्ट में जा रहा है. दिस इज x, दिस इज माइनस x, दिस इज y, दिस इज माइनस y, राइट. x के अलॉन्ग यूनिट कैप है i कैप है, इसके अलॉन्ग j कैप है, ये माइनस i कैप है और ये माइनस j कैप है, राइट. तो मैं 10 i कैप लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, करेक्ट. अभी vb को रिप्रेजेंट करना है ना. नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट vb. फ्रेंड इस तरह एक आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड एंड दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री. तो मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? 10 cos 30 ना. ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? 10 sin 30. इज दैट क्लियर? वेक्टर रिजोल्यूशन पे मैंने बताया था, करेक्ट. तो 10 sin 30 मतलब कितना? 10 into sin 30 is how much? 1/2. So that is 5 units, 5 मीटर along x axis. उसका मतलब वही है. 10 cos 30 मतलब cos 30 is √3/2 I think. So that is 5 √3 along y axis, है ना. तो ये जो vb वेलोसिटी ऑफ b जो है उसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं? 5 i कैप प्लस 5 √3 j कैप. कुछ गलत है क्या इस पे? क्योंकि वो x पे जा रहा है मतलब 5 मीटर और y पे जा रहा है 5 √3 मीटर पर सेकंड पे. मैंने कंपोनेंट्स निकाल लिया. कुछ गलत किया क्या? आर यू गेटिंग दैट? तो वेलोसिटी ऑफ b कैन बी रिटन दिस मच. Yes, sir. ऑफ नॉर्थ मतलब उसका मतलब वही है, करेक्ट. Excuse me, sir. यस Can you explain what? स्टूडेंट, फाइनली आपको va का वैल्यू पता चल गया वेक्टोरियली और vb का भी वैल्यू पता चल गया, ठीक है. और हमें क्या निकालना है? vba निकालना है, करेक्ट. vba दैट मींस हमने बताया था vb minus vs. Now getting or not? vb is how much? 5 i cap plus 5 √3 j cap. Is that clear? ये निकाले हमने अभी अभी. This one I got. We got this one. Yes or no? Yes, sir. और a कितना है? -10 i cap, है ना. थोड़ा अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आएगा? 5 i minus 10. तो -5 i cap आ जाएगा, करेक्ट. प्लस 5 √3 j cap आ जाएगा. Is that clear? This is vba, है ना.
यू गॉट VBA इन वेक्टर फॉर्म, करेक्ट। जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं तो मतलब इसका ये हो गया, मतलब अगर मैं वेक्टोरियल इसको दिखाऊं तो माइनस गया है, -5 गया है x पे, है ना, और इस तरफ गया है 5√3, इज दैट करेक्ट? तो इस तरह कुछ वेक्टर जा रहा है, ये सर नो स्टूडेंट्स, है ना। Yes, sir. मतलब आई कैप जो है वो 5 में गया है, -5 में, तो इसलिए इस तरफ लिख दिया हमने 5, और जे कैप तो 5√3 इस तरफ है, सो दिस इज द नेट, मतलब VBA इज इन दिस डायरेक्शन, यस सर नो, करेक्ट और नॉट। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालूं, आपको पता है जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मान के चलो यहाँ पर मैंने एक सैंपल वेक्टर लिया, दिस इज x i कैप प्लस y j कैप, उसका मतलब क्या है कि ये कुछ डिस्टेंस x पे गया है और कुछ डिस्टेंस y पे गया है, करेक्ट। इफ आई वांट टू फाइंड दिस एंगल, इफ आई वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड, तो हम मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर कर देते हैं, करेक्ट। अगर हमें ये अल्फा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई x, इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. तो यहाँ पर आपको x कंपोनेंट दे दिया गया है, y कंपोनेंट दे दिया गया है, तो अगर मैं सिर्फ आपको पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ VBA, इफ आई विल बी आस्किंग यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ VBA, का मैग्नीट्यूड क्या है, तो मतलब क्या करेंगे, पूरा 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर का रूट अंडर, ये सब नो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। सो दैट इज 25 प्लस 25 into 3, दैट इज 100 आई थिंक। Yes, sir. तो कितना हो गया, नेट मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। बट यहीं से तो काम नहीं खत्म हुआ, हमें tan अल्फा भी निकालना है, करेक्ट। tan अल्फा इज इक्वल टू y by x, हमेशा दिस इज y एंड दिस इज x, ऑलवेज यू कैन पुट डायरेक्टली y by x। सो y कितना है सर, 5√3 है सर, और x कितना है सर, -5 है। सो कितना आ गया सर, -√3 आ गया। -√3 किसका है, tan का, 120 डिग्री, करेक्ट। So tan alpha is equal to √3 means tan alpha is equal to -√3 is tan 120 degree, correct. So alpha कितना हो गया, 120 डिग्री। किसके साथ एंगल बना रहा है 120 डिग्री, वो जो अल्फा एंगल मैंने लिया 120 डिग्री, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमेशा हम एंगल लेते हैं, करेक्ट, यस सर नो। Yes, sir. 120 डिग्री जो बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, करेक्ट। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अगर वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 120 डिग्री कुछ इस तरफ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। यहाँ तक 90 हो गया, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, यस सर नो। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, एंड दिस इज VBA, यस सर नो। ये 30 है तो ये कितना है, 60 है। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब आई कैन राइट, अगर मैं इस तरफ से देखूं वेक्टर को, अगर मैं यहाँ से निकलूं तो 60 डिग्री क्या लिख दूं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख दूं ना। इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट लिख सकता हूँ कि नहीं। I can write this vector as 60 degree north of west, समझ पे आ रहा है, मैंने बताया था आपको Yes, towards जोड़ना है, 60 डिग्री towards north from west, करेक्ट। अगर इस साइड से देखूं तो 30 डिग्री, मतलब लिख सकता हूँ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. याद आ रहा है वो चीज, उसका इंपॉर्टेंस याद आ रहा है कि नहीं, मैंने क्यों बताया था उसी टाइम पे पहला क्लास पे। Sir, वेट, सो दिस इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट, दोनों एक ही वेक्टर है। बट मैं किस हिसाब से लिख रहा हूँ, 30 डिग्री हमेशा हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, मतलब मैंने बताया था आपको, टुवर्ड्स जोड़ देते हैं और ऑफ की जगह में फ्रॉम जोड़ के उसको बोलते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, उसका मतलब वही है, और ऑफ मतलब फ्रॉम वेस्ट, करेक्ट। इस तरह जोड़ के देखेंगे तो आ जाएगा रिस्पेक्टिव वेक्टर। लेट्स राइट ए क्वेश्चन, एग्जांपल जो हमने समझे उसको क्वेश्चन पे फ्रेम करते हैं। A person moved due east. A person moved due east at a speed 6 meters per second and feels the wind is blowing to south, at a speed of 6 meters per second. At a speed of 6 meters per second, right? उसने ये पूछा है फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड फ्लो। फील करता मतलब उसको लगता है, फाइंड एक्चुअल
velocity, right? Find actual velocity of wind blow, correct? Number 2, if the person double his velocity, right? If person double his velocity, if person double his velocity, correct? Then find the relative velocity of wind. Then find the, Abhinav mute. Then find the relative velocity of wind. Find the relative velocity of wind blow with respect to man. With respect to man, ठीक है? Just क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. Students, person move due east with a speed of 6 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो मतलब अगर मैं डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, इफ आई रिप्रेजेंट इट डायग्रामेटिकली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ना vm, वो इस डायरेक्शन पे है, एंड वो कितना है? दैट इज द पर्सन मूव ड्यू ईस्ट एट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, राइट? ये सब चलो ठीक है. नेक्स्ट उसने दे दिया कि उसको लगता है मतलब दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, एक्चुअल में कुछ अलग है, कि विंड जो है ना वो किस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है? साउथ की डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, कितने में? 6 मीटर पर सेकंड पे, है ना? उसको लगता है कि एक्चुअली एक वेलोसिटी ऑफ मैन एक है और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड भी कुछ अलग है. तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखें, इफ आई विल बी सेइंग कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दैट मींस व्हाट? वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, करेक्ट? सॉरी, वेलोसिटी ऑफ विंड यहां पर लिखना चाहिए था. दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, करेक्ट? वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये सब. तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ विंड की बात करें सिर्फ, सो दैट विल बी हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, करेक्ट है ना? तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या दिया हुआ है? क्या लगता है उसको? मतलब दिस इज द वेलोसिटी व्हाट द मैन फील्स, और वो कितना है? दैट इज 6, यस और नो? वो कितना दे दिया हुआ है? VWM कितना दिया हुआ है? दैट इज 6 दिया हुआ है इस तरफ टुवर्ड साउथ. टुवर्ड साउथ मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 6 माइनस 6 जे कैप, क्योंकि ऊपर ये y है, ये माइनस y है. दिस इज x, दिस इज माइनस x. ये i कैप है, ये माइनस i कैप है. ये j कैप है, ये माइनस j कैप है, करेक्ट? ये सब नो. और वेलोसिटी ऑफ मैन किस तरफ है? प्लस 6 i कैप. तो हम लिख सकते हैं माइनस 6 j कैप प्लस 6 i कैप. लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू, हमने वेक्टोरियली लिख दिया 6 i कैप माइनस 6 j कैप, करेक्ट? तो अगर हम उसको ग्राफिकली, अगर तुम्हें पिक्चोरियली दिखाऊं आपको, तो दैट इज दिस इज i कैप, दिस इज माइनस i कैप, दिस इज j कैप, दिस इज माइनस j कैप, और डायरेक्शन के हिसाब से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. मैंने बोला 6 i कैप माइनस 6 j कैप को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करूं, मतलब इस तरफ गया है और इस तरफ माइनस, so it will be like this, correct? I think this one is correct. So this is the velocity of wind, right? और वो कितना एंगल बना रहा है? देखो यहाँ पर देखते हैं एंगल पर. इसका अगर मैं एंगल निकाल दूं तो अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? tan इनवर्स ऑफ y by x, that is 6 by 6 1. तो tan इनवर्स ऑफ 1 I think 45 डिग्री है. So this angle is going to be 45 degree. Is that clear? So that means अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालूं, what is the magnitude? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ विंड का अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर का रूट ओवर. That is how much? That is 6 root 2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? तो अगर मैं अभी बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो दैट इज 6 root 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? अगर मैं बात करूं एंगल की, तो दैट इज 45. तो ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड of the wind velocity, and this is the actual wind velocity. So velocity of, पहले उसने पूछा actual velocity of the wind flow. So actual velocity of the wind flow is equal to, that's magnitude is 6 root 2 मीटर पर सेकेंड. अगर डायरेक्शन की बात करूं तो 45 डिग्री, मतलब हम साउथ ईस्ट लिख सकते हैं. we can write it, it is blowing to south east. जहां पर 45 आता है एग्जैक्टली मिड पॉइंट, it is blowing to साउथ ईस्ट. अगर 30 या फिर अलग कुछ एंगल आता तो हम उसी हिसाब से लिखते हैं, साउथ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ, डिपेंडिंग कि हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, ठीक है?
कुछ देख सकते हो आप। सेकंड बिट पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड बिट पे दिया हुआ है कि द पर्सन डबल इज वेलोसिटी, मतलब अपना डायरेक्शन वो सही रखा है बट उसने वेलोसिटी को डबल कर दिया, है ना। तो मतलब सेकंड बिट में अगर देखा तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज डबल हो जा रहा है, मतलब कितना परसेंट डबल, देन बीएम कितना बन जाएगा 12 आई कैप, राइट। Yes or no? But any comment, no comment is given about the wind velocity, na? Yes or no? Vm is equal to 12 I cap, right? And actual wind velocity remains unchanged, right? Actual wind velocity, actual wind velocity remains unchanged. Yes or no? So that means velocity of wind with respect to man क्या है? Velocity of wind minus velocity of man, ना? और वेलोसिटी ऑफ विंड हमने क्या निकाले 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप, राइट। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया है अभी 12 आई कैप, करेक्ट। तो थोड़ा सब्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं क्या हम इसको वेक्टोरियली। इसको मैं लिखा हूं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, सो 6 आई कैप माइनस 12 आई कैप, तो क्या हो जाएगा माइनस 6 आई कैप हो जाएगा, करेक्ट। और माइनस 6 जे कैप था, रह गया, करेक्ट। ये सब नो। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन अभी क्या फील होगा कि x में भी माइनस 6 आई कैप, मतलब 6 आई कैप माइनस 6 लिख रहा हूं क्योंकि नेगेटिव लिया वहां पर, तो दैट इज माइनस 6 जे कैप, करेक्ट। तो ये इस तरह हो गया कुछ। तो नेट डायरेक्शन विल बी हियर, अगर 6 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, पर डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वही, इफ आई विल टेक द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, then its magnitude कितना हो जाएगा वही 6√2 मीटर पर सेकंड, बट डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना, कितना हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप किसी भी तरह बोल सकते हो, दैट इज साउथ वेस्ट, यस और नो। सो नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड, राइट, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड, now relative velocity of wind is 6√2 meter per second, that is to southwest, correct, to southwest, just write it.